बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, पद्मावती मात की जय। पर्युषण महापर्व के इस तृतीय दिन पर आज अहमदाबाद साबरमती मोटेरा मध्य श्री कामेश्वर अपार्टमेंटे कामेश्वरी पद्मावती चरण सानिध्य सभी लोग साथ में मिलकर अद्भुत भक्ति कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ इस भक्ति में जुड़े और अपने अशुभ कर्मों का क्षय करें। हम श्री पंकज भाई शाह से विनंती करेंगे कि वो हमारे को भक्ति में जोड़ेंगे। नमो 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 नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप जपे उसे मिले बहुजल किनारा। ओम हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोये सौकसाहुणम नमो लोये सौकसाहुणम। ऐसो पंचन मुद्गारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणो च सब्देसि पद्मं भवै मंगलम्। नमो 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 नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप जपे से मिले बहुजल किनारा। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोये सौकसाहुणम नमो लोये सौकसाहुणम। ऐसो पंचनमस्कारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणो च सब्देसि पद्मं भवै मंगलम्। पुण्यन पोषण पापन शोषण पुण्यन पोषण पापन शोषण जगमा वीर प्रभु ने आओ। कल्प सूत्र लैया बोले आजे, बारसा सूत्र लैया आजे। पर्व पजूषण आव्या रे, पर्व पजूषण
से आव्या रे सुन जो साजन सुन जो साजन पुण्य पोषण पाप शोषण पुण्य पोषण पाप शोषण बोल श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोल श्री राजराजेश्वरी माँ भगवती पद्मावती मात की जय। बोल श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। જીવનમાં ઘણા બધા દિવસો જોયા પણ પર્વના દિવસો સાંકડા કીધા છે। આખા વર્ષ દરમિયાન જે પણ પાપ 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 કોઈ દુનિયાની અંદર આપણે ફર્યા કર્યા ચર્યા કર્યા અને એક નાનકડા જીવ જંતુએ આખી દુનિયાને બાનમાં લઈ લીધો પણ મંદિરો ભલે બંધ થયા પણ પરમાત્મા મહાવીર સ્વામીએ જવાબ આપ્યો તે ભલે અમારા મંદિર બંધ કર્યા પણ મેં તો ઘર ઘર મંદિર બનાવી દીધા છે। પ્રભુજી અજીવાડા દેખાડો અજીવાડા દેખાડો પ્રભુજી અંતર દ્વાર યુગાડો અજવાડા દેખાડો અંતર દ્વાર યુગાડો અજવાડા દેખાડો અંતર દ્વાર યુગાડો પ્રભુજી અજીવાડા દેખાડો પ્રભુજી અજીવાડા દેખાડો। जय हो। काम क्रोध मने पान बुलावे माया ममता नाची नचावे काम क्रोध मने पान बुलावे माया ममता नाची नचावे सत्य मार्ग बोली पति पूछो
સત્ય માર્ગ બોલી બટી પૂછું રાતે સુજે દાડો રાતે સુજે દાડો પ્રભુજી અજવાળા દેખાડો પ્રભુજી અંતર દ્વાર ઉગાડો નથી હે પ્રભુ તાર્યો અનંત દુઃખોથી મુજને ઉગાર્યો દર્દેની ભક્તિ હે પ્રભુ તાર્યો અનંત દુઃખોથી મુજને ઉગાર્યો एक उपकार करो जी मुझी पर एक उपकार करो जी मुझी पर जन्म मरणी भय टळो जन्म मरणी भय टळो प्रभु देखाड़ो प्रभुजी अंतर द्वार उगाड़ो जन्म जीवन तमे છો ત્રાતા તમે પ્રભુ મારા ભાગ્ય વિધાતા જન્મ જીવન તમે છો ત્રાતા તમે પ્રભુ મારા ભાગ્ય વિધાતા एक उपकार करो हजी मुझी पर एक उपकार करो हजी मुझी पर नहीं बोलूं उपकारो नहीं बोलूं उपकारो प्रभु जी अजीबारा देखाड़ो प्रभु जी अंतर द्वार उगाड़ो प्रभु जी अंतर द्वार उगाड़ो જ્યારથી આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ લીધો ત્યારે સૌ પ્રથમ જ્યારે આપણો જન્મ થયો ત્યારે આપણી માતાએ કાનની અંદર 68 અક્ષર રૂપી નમસ્કાર મહામંત્ર જે 14 પુરાવનો સાર છે એ કીધો અને શરૂઆત કરી નમો હરિહંતાણમથી ખરેખર ધન્ય છે
કેટલા બધા અનંતના અનંતો પુણ્ય કર્યા હશે ને, કેટલાય ગતિ આપણે ફરી આવ્યા હશું ને, અને કેટલાય પુણ્યો કર્યા હશે. ત્યારે આપણે આ મહાવીરનો ધર્મ મળ્યો, જૈનનો ધર્મ મળ્યો, આ પાર્શ્વનાથ દાદા મળ્યા, અને આ પદ્માવતી માતા કહેવાય તો આપણી જન્મદાતા જે માતા છે એને જ ઓળખાણ કરાવી કે આ રાજેશ્વરી માં ભગવતી પદ્માવતી માત છે. તો એ માં પદ્માવતી અને શંખેશ્વર દાદા, જીરાવાલા દાદા, અમે પાપા પગલી ભરીને તારા પગલે આવ્યા છીએ. અમે તો એક બાળક છીએ. તો બસ અમારા આ દિવ્ય દંપતી રિસર્ચ સેન્ટરની અંદર ખાસ અમારા પ્રણેતા દિનેશભાઈ ગાંધી, ખાસ એમના માર્ગદર્શન હેઠળ અમને પણ બધાને ખૂબ ખૂબ એક ભક્તિ રૂપે જોડ્યા છે. ખૂબ ખૂબ અનુભવ. હવે તો અક્ષર પાડો ને હરિવર મારી કોરી પાની છે. તમારા પગલે પગલે પાપા પગલે માની છે. પ્રભુ તમારા પગલે પગલે પાપા પગલે માની છે. હવે તો અક્ષર પાડો હરિવર, હવે તો અક્ષર પાડો ને હરિવર મારી કોરી પાટી છે. પ્રભુ તમારા પગલે પગલે પાપા પગલે માની છે. બાળક છું મને ખબર જાઉં શું છે સાચું જીવન. બાળક છું મને ખબર જાઉં શું છે સાચું જીવન. પડી જાઉના ક્યાંય પ્રભુજી, પડી જાઉના ક્યાંય પદ્માવતી મારી કોરી પાટી છે. પ્રભુ તમારા પગલે પગલે પાપા પગલે માની છે.
ચાલું છું તમને પધની સગરે ગમ પધની સાડી ધબ મગરે ગમ પધની બાળક પકડે માની આંગળી એમ હું ચાલું છું તમને બરસારાણી ભરે સરોવર બરસારાણી ભરે સરોવર એમ કરી દો અમને અમે અમારી હથેળીઓમાં મિલનની રેખા માંડી છે પ્રભુ તમારા પગલે પગલે બાપા પગલી માંડી છે બાપા પગલી માંડી છે બાપા પગલે માંડી છે यहाँ पर करीबन 10 साल से बहुत लोग अपनी मनोकामना लेकर के पद्मावती माता के चरणों में आते हैं। जो भी भाविक लोग अपनी भक्ति माता जी को समर्पित करते हैं वो सभी पुण्यशाली लोगों का संकल्प पूरा होता है। करीबन 25 साल पहले चेन्नई के अंदर एक वास्तु के लिए मैं गया था और वहाँ पर एक मकान की खुदाई का काम चल रहा था। उसी में से ये प्रतिमा जी हमारे को प्राप्त हुई और उसके बाद वसंत गुरु जी ने 1250 पुष्प से ये प्रतिमा जी की पूजा की यहाँ आकर के, और उस प्रतिमा जी के अंदर उन्होंने प्राण डाले। उस दिन से आज तक यहाँ पर बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। ये अहमदाबाद साबरमती मोटेरा में कामेश्वर अपार्टमेंट में कामेश्वरी पद्मावती के नाम से प्रसिद्ध है। आज से 5 साल पहले मेरे पास एक भाई आए थे और वो बहुत प्रॉब्लम में थे। तब उन्होंने कहा था कि दिनेश भाई कोई एक ऐसा चमत्कार यदि हो जाए तो मैं बहुत लोगों के बहुत काम करूँगा। उसके बाद यहाँ पर उनको मैंने संकल्प रखा है और वो संकल्प पूरा होने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये माता जी का पूरा जो हमने मंदिर बनाया है उसके लिए जितना भी हमें सहयोग चाहिए वो सहयोग देने के लिए हमें खुद ने सामने से ऑफर की और उन्हीं भाग्यशाली के प्रभाव से सहयोग से ये इतना अद्भुत मंदिर बन पाया। आज इस पद्मावती मंदिर के अंदर बहुत सारी एंटीक सुपर एंटीक चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रभावशाली यंत्र हैं। करीबन आज तक यहाँ पर 3500 तो पूजाएँ हुई है, लाखों करोड़ों जाप हुए, 14 से 15 आचार्य भगवंत आए, बहुत अघोर विद्या के साधक लोग भी आए और जो लोग भी आए यहाँ पर वो सभी ने माता जी की साधना की और सभी को अपने अपने हिसाब से उनका फल प्राप्त हुआ। जो भी भाग्यशाली ये आवाज़ सुन रहे हैं या तो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर ओम ह्रीम पद्मे नमः इस मंत्र का खाली 3 बार जाप करके संकल्प कर लीजिए, आपका संकल्प भी पूरा हो जाएगा। पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये पद्मावती माता छाए हुए हैं, अणु अणु के अंदर, परमाणु के अंदर माता जी की शक्ति छुपी हुई है। सिर्फ आपको एहसास करना है, अनुभव करना है और विश्वास को प्रकट करना है। और जैसे ही विश्वास प्रकट हो जाएगा और श्रद्धा का दीप जल जाएगा, आपके जीवन में उजाला हो जाएगा। आज हम पंकज भाई से निवेदन करेंगे कि माता जी की भक्ति में हमें तरबोर करें, माता जी की भक्ति में हमें आगे बढ़ाएं। और पूजा बहन आप भी अपने सुंदर कंठ के अंदर हमारे को एक सुंदर स्तवन सुनाएं। दर्शन दे जो ना
દર્શન દેજો નાથ દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પોકારે દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પોકારે દર્શન દેજો નાથ 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 ભક્તો તારા તને પોકારે દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પોકારે દર્શન દેજો નાથ હલો હે અંતરની તમે આશા પૂરજો દુખડા સૌના હરજો દીનદયાળુ દાતા મારા રક્ષા સૌની કરજો હે અંતરની તમે આશા પૂરજો દુખડા સૌના હરજો દીનદયાળુ દાતા મારા રક્ષા સૌની કરજો ભૂલું ના કરે છૂટે ના તારો ભૂલું ના કરે છૂટે ના તારો ભક્તો તારા તને પોકારે દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પોકારે દર્શન દેજો નાથ હલો મીઠી મીઠી તાળી પ્રભુ તારા ચરણોમાં માંગુ તારી સેવા સંકેશ્વરના પાશ પ્રભુજી હો દેવાજી દેવા માતા તારા ચરણોમાં માંગુ તારી સેવા મોઢેરાના પદ્માવતી ઓ માતાજી દેવા લઈએ તારું કરીએ તારું ધ્યાન લઈએ તારું નામ કરીએ તારું ધ્યાન ભક્તો તારા તને પોકારે દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પોકારે દર્શન દેજો નાથ 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 ભક્તો તારા તને પોકારે દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પોકારે દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પોકારે દર્શન દેજો નાથ બોલ શ્રીમાં પદ્માવતી માત કી જય બોલ સિજીરાવલા પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી જય જન્મ લીધો જૈન કુળમાં અવતાર લીધો પણ જે જીત અને ગળું આપ્યું છે ગળું અને જીભ બંને જોઈન્ટ છે પણ તે ગળાની અંદર માં સાક્ષાત રૂપે સરસ્વતીએ જે કંઠ આપ્યો હોય ને એને જ કંઠ કહેવાય કે જે કંઠ માત્ર ને માત્ર રાજ રાજેશ્વરી માં પદ્માવતી
અને પાર્શ્વનાથ એ 24 તીર્થંકર માટે જે આપણે બોલી શકીએ એ જ આ સરસ્વતી માની કૃપા દ્રષ્ટિ છે. હો પધની સગ કરે ગમ પધની સા સોની ગપમ ગગરે ગમ પધની સા. પ્રભુ મારા સુરમાં તું પૂજે હે હે ઉત્થાપી સકું જીતિરા હે ઉત્થાપી સકું જીતિરા પ્રભુ મારા કંઠમાં જગને રીઝાવી ઉઠાડો જગને રીઝાવી ઉઠાડો ના સમજાય સંગીત સાચું ના સમજાય સંગીત સાચું Pergi tu antarma Pergi tu antarma Evi jaya Pergi tu antarma Evi jaya Jeti gai sapuri tira Jeti gai सपूरे तेरा प्रभु मारा धन सगरे गमई सानी धप मगरे रे गम पदनी सानी सानी धप मग पदनी सा रे गम
पदानी सानी सानी दा प ग ग रे ग म पदानी सानी सा सा रे ग म पदानी सानी सानी दा प ग ग रे ग म पदानी सानी सा रा मेरे ने जेर ने बांसुरी वगाड़ी जेर ने बांसुरी वगाड़ी गीत कमंड लगाया गीत कमंड लगाया ते सूर बोले तन नो तंबूरो ते सूर बोले तन नो तंबूरो सुरो बजा विखिरायो सुरो बजा विखिरायो प्रगटावी के प्रगटावी के तू प्रीतनी पैरा प्रगटावी के तू प्रीतनी पैरा जे ते उता सको ये तेरा जे ती उताई सको ये तेरा प्रभु मारा कंठमा जय मां भगवती दुनियानी माया छे दुखिडानी छाया दुनियानी माया छे दुखिडानी छाया तोय कदी न मुकाती तोय कदी न मुकाती ज्ञानी गणाए दिखाई गया पर ज्ञानी गणाए दिखाई गया पर दिशा जीना देखा दिशा जीना देखा चमका चमका विजय तू एवो चीरा चमका विजय तू एवो चीरा जे ते उता नहीं सको ये तेरा जे ती उता नहीं सको ये तेरा प्रभु मारा कंठ मत दे देवरा देवी पद्मावती तू दे देवरा जे देवता सको रे तेरा जे देवता सको रे तेरा मिठी मिठी गाने चलो बुलावा आया है मेरे दादा ने बुलाया है चलो बुलावा आया है मेरे दादा ने बुलाया है चलो बुलावा
बुलाया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, अरे चलो बुलावा आया है, पास ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, पास ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, वीर प्रभु ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, वीर प्रभु ने आया है। ऊंचे ऊंचे डूंगर ऊपर दादा का ठिकाना है, चलो बुलावा आया है, मेरे आदिनाथ ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, मेरे गिरनार देवी नाथ ने बुलाया है। अरे रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, अरे रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। पारसनाथ तुम्हारी कामेश्वरी पद्मावती ने राओ, तुम्हारी कामेश्वरी पद्मावती ने राओ, तुम्हें दर्शन करवा आओ, तुम्हें दर्शन करवा आओ। रे गम पदनी सा सानी गम रे सा। बोल श्री भगवती माँ राज राजेश्वरी पद्मावती मात की जय। यहाँ पर कामेश्वरी पद्मावती माता 10 साल से विराजमान है। यहाँ के बहुत चमत्कार हैं जिसको शब्दों में कभी भी वर्णन नहीं किया जा सकता है।
मगर आज पंकज भाई की बहुत इच्छा भी है और सब लोगों को सुनना है। तो एक बहुत छोटा सा चमत्कार जो हमारे को अंदर से झंझोड़ देगा, अंदर से जागरूक कर देगा। करीबन 8 महीना पहले की बात है। यहाँ पर हर शुक्रवार को भक्ति होती थी और पंकज भाई आप ही कराने के लिए आते थे। तो शाहीबाग से एक मोहन भाई मारवाड़ी करके आते थे और उन्होंने मेरे को बोला कि ये मेरे नाम से बोलना, ताकि लोगों को विश्वास बैठे कि आज भी चमत्कार होते हैं। यहाँ शुक्रवार की भक्ति चल रही थी। उस भक्ति के अंदर मैंने ऐसा सबको बताया कि कभी अपने जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, बहुत गहरी समस्या आ जाए, चारों तरफ अंधेरा छा जाए, तो सिर्फ इतना याद करना कि हे लाल कपड़े वाली माँ तू मेरी रक्षा कर, हे लाल कपड़े वाली माँ तू मेरी रक्षा कर। फिर देखो माँ का क्या चमत्कार होता है। बस ये बात कह के मैंने मेरी बात पूर्ण कर दी। भक्ति पूर्ण होने के बाद 5-6 दिन गुजर गए और शाहीबाग में मानसी सोसाइटी बंगला नंबर 5, आज भी वो सेठ वहाँ पर रहते हैं। उनका एक लड़का यूएसए अमेरिका में रहता था और एकलौती एक बेटी उनके साथ रहती थी। उनके धर्मपत्नी को हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम था। पूरा हंसता खिलता तीनों का परिवार बंगले में रहता था। अब क्या हुआ, रात को 4 बजे वो सेठ की आंखें खुल गई तो लड़की का कमरा खुला था। अब सेठ एकदम घबरा गए कि 4 बजे सुबह में लड़की क्या कर रही है, क्या उसको नींद नहीं आ रही है, कोई टेंशन में है। तो सेठ धीरे धीरे वो नीचे आए, आके देखा तो कमरे में वो लड़की थी नहीं, सब किताब इधर उधर पड़ी हुई थी। थोड़ा सा घबराहट हुआ, क्या कोई अनहोनी तो नहीं हुई होगी ने। फिर एक कमरा देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, एक भी कमरे में लड़की नहीं थी। अब सुबह में 4 बजे किसको फ़ोन करना, लड़का तो अमेरिका में है, वाइफ को हार्ट का प्रॉब्लम है तो किसी के घर बात नहीं कर सकते हैं। तब उनको वो मेरी बात याद आई। दिनेश भाई ने कहा था कामेश्वरी पद्मावती के सानिध्य में कि हे लाल कपड़े वाली माँ तू मेरी रक्षा कर। सेठ को अंदर से घबराहट होने लगा तो जो डाइनिंग टेबल की चेयर थी उसके ऊपर बैठ गए। धीरे धीरे ये बोलने लगे कि हे लाल कपड़े वाली माँ तू मेरी रक्षा कर। उसके बाद जीव बहुत घबराने लगा तो धीरे धीरे वो मेन डोर की तरफ गए। मेन द्वार के पास गए तो दरवाज़ा अंदर से भी खुला था, बाहर से भी खुला था। मतलब पक्का हो गया लड़की घर छोड़ के चली गई। तो बहुत टेंशन हुआ। उन्होंने सोचा चलो सोसाइटी के बाहर एक राउंड लगा के आता हूँ, तब तक कुछ हो जाएगा। तो बोलते बोलते गए कि हे लाल कपड़े वाली माँ मेरी रक्षा करो। और एक चमत्कार हो गया। सोसाइटी के द्वार पर जो चेयर रखते हैं ना बैठने के लिए सब लोगों को, उधर वो लड़की बैठी हुई थी, एकदम बेहोश अवस्था में थी। वो पिताजी वहाँ गए और लड़की को थोड़ा हिलाया, लड़की एकदम जागरूक हो गई और पिता को बैठ के बोलती है कि हे पिताजी मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ बेटा, मुझे कुछ मालूम भी नहीं पड़ा, तू घर छोड़ के क्यों चले गई। तो उसने कहा मैं तो आज यहाँ से निकल जाने वाली थी। बोले तेरे को किसने रोका। तो वो लड़की ने कहा कि पिताजी मैंने घर छोड़ दिया। घर के बाहर निकल के जब मैं सोसाइटी के गेट से बाहर निकल रही थी ने तो एक लाल कपड़े वाली स्त्री मेरे सामने आ गई और मैं एकदम डर गई और घबराहट की मारी मैं यहाँ बैठ गई और आप 5 मिनट में यहाँ पर आ गए। यदि वो लाल कपड़े वाली स्त्री नहीं आती ने तो मैं कभी की घर छोड़ के चली गई होती, आपके हाथ में भी नहीं आती। फिर वो मोहन भाई दूसरे दिन यहाँ पर आए, सोसाइटी के सब लोगों को एकत्रित किया और उन्होंने कहा दिनेश भाई ये मेरी तरफ से माता जी को एक कवर है छोटा सा और आप कंटिन्यू हर बात बाकी माता जी की भक्ति कराना। इससे बहुत सारे चमत्कार नाम के साथ, टेलीफोन नंबर के साथ, एड्रेस के साथ मेरे ऑफिस में, मेरी फाइल में सब लिखे हुए हैं। आप भी माता जी से जुड़ जाइए। आप आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास अर्पण कर दीजिए तो एक दिन आपका भी नाम इसमें जुड़ जाएगा। और इनके जो हमारे पंकज भाई हैं उनके जीवन में भी बहुत बड़ा एक चमत्कार हो गया। एक छोटा सा संकल्प उन्होंने यहाँ आके रखा कि हे माता जी मेरा भी एक सुंदर आवास हो जाए, सुंदर एक रेसिडेंट हो जाए
और मात्र 45 दिन के अंदर वो संकल्प पूरा हो गया। ऐसे बहुत सारे संकल्प उनके भी यहाँ पूरे हुए हैं। जब उनके यहाँ कोई एक रिश्तेदार का हॉस्पिटल में थे, माता जी के पास प्रार्थना रखने के लिए आए और तुरंत माता जी ने अपने मस्तक के ऊपर से नीचे फूल गिरा दिया। मैंने पंकज भाई को बोल दिया कि अभी सावधान हो जाना, जितना भी हो सके उतना धर्म सुना देना और आपके परिवार को भी सावधान कर देना। और थोड़ी मिनटों के अंदर वो मैसेज आ गया कि वो भाई इस दुनिया से चले गए। ऐसे यहाँ दूसरा ये पूजा बहन के साथ भी चमत्कार हुआ। जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मेरे को एक सिक्के से बहुमान किया, वो लेके मैं निकल गया। 5 मिनट में मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि उसमें इतनी गर्मी आ गई, एकदम गर्मी आ गई। और मैंने उनको वो वापस दिया और कहा ये आपके घर में रख दो, आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मगर हम सबको बताते नहीं हैं। आज पंकज भाई की भावना थी, इसलिए सबको बताइए। आप भी श्रद्धा से समर्पित होंगे तो आपके जीवन के अंदर चमत्कार का एक नया अध्याय जुड़ेगा। पर्युषण महापर्व का ये तीसरा दिन है। कल कल्पसूत्र का वांचन शुरू हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। भगवान ने 12.5 साल तक घोर साधना करके अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। उस केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जैन शासन की स्थापना की, 11 गंधर्व बनाए और उन्होंने द्वादश सांगी की रचना की। और उसी द्वादश सांगी के माध्यम से हम लोग यहाँ तक प्रकाश को लेकर के आए। आज पर्युषण महापर्व के इस तीसरे दिन पर हम एक सुंदर स्तवन सुनेंगे, उसके बाद पद्मावती चालीसा बोल के भक्ति को पूर्ण करेंगे। Thank you.
જીરાવલા પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી જય બોલ શ્રી શંકેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી જય બોલ શ્રી મોહરી પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી જય બોલ શ્રી ભગવતી રાજરાજેશ્વરી મા પદ્માવતી માત કી જય। એક કવિએ બહુ સરસ મજાની વાત કરી છે, બહુ અદ્ભુત છે। માનવી મૂંઝવણમાં મુકાય ને પછી શું કરવું શું ન કરવું એને કાંઈ ખબર પડતી નથી। અહીંયા જે પણ કાંઈ ભાઈઓ અમારા બેઠા છે આર્ટિસ્ટો, કીબોર્ડ ઉપર રાજેશભાઈ બોદાણા અને સાથે કરતાલ મંજીરા ઉપર જે કહેવાય પર્યુષણ પર્વની અંદર પણ જે કહેવાય જે જનને મુસલમાન છે એવા હૈદરભાઈ અને સાથે તબલા ઉપર ધર્મેશભાઈ સોલંકી અને સાથે સાથે ગવર્મેન્ટની અંદર આ કોરોના વાયરસની અંદર સતત કોરોના વોરિયર્સ તરીકે જેમને સેવા બજાવી છે એવા અરવિંદભાઈ રાવત અને મારા ઉપકારી અને ખાસ કરી અને સાઉન્ડમાં જે કહેવાય વિષ્ણુભાઈ પણ એમને કંઠ સરસ આપ્યો અને અમને ખરેખર આ સંસ્થાના સ્થાપક દિવ્યલબ્ધિ રિસર્ચ સેન્ટર જેના સ્થાપક છે એ શ્રી દિનેશભાઈ ગાંધી, શ્રી હાર્દિકભાઈ અને શ્રી સનીભાઈને લાખ લાખ વંદન અને સાથે સાથે મારી પોતાની દીકરી જે કહેવાય દિનેશભાઈએ પણ એને દીકરી બરાબર એમની દીકરી બરાબર સમજી છે એવી મારી હિમાણી ઉર્ફે પૂજાબેન જે પણ નવકાર ક્લાસીસની અંદર કેમેસ્ટ્રીનું ખાસ અભ્યાસ કરાવે છે એ મારી દીકરી પણ આજે કંઠમાં ગાય છે। અને હવે અહીંયા બહુ સરસ મજાની વાત એક કવિએ કીધું છે અને આપ લોક જે આમાં પદ્માવતીના ચાલીસા સાંભળે એનો જે સંકલ્પ મૂકે એનો સંકલ્પ સિદ્ધ થાય ને થાય છે। મોજાય છે સુમનમાં સમય જતા વાર નથી લાગતી, રહી જશે મનની મનમાં એ વાત મને સાચી નથી લાગતી। કોને ખબર છે કે કાંકરા રેતીમાં બદલાઈ જતા વાર નથી લાગતી, ક્ષિતિજને જોઉં છું જ્યારે સૂર્યાસ્ત ને સાંજ થતા વાર નથી લાગતું। અરે રાગ ફેશન ને કાઢી, અરે રાગ ફેશન ને કાઢી પ્રેમથી સૌ પર્વ પ્રદૂષણમાં જીવન જીવી લેજો। હૃદયને બંધ થવામાં વાર નથી લાગતી, હૃદયને બંધ થવામાં વાર નથી લાગતી। કુંડલીમાં શનિ અને દિમાગમાં મની, જીવનમાં દુશ્મની ત્રણે હાનિકારક છે। અરે બદલો લેવામાં શું મજા છે જ્યારે તમે સામાવાળાને બદલી નાખો છો। અરે માણસની ઓળખ, અરે શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓની ઓળખ માત્ર કર્મથી છે, બાકી મોંઘા કપડા તો શોરૂમમાં પૂતળા પર પહેરે છે, પૂતળા પર પહેરે છે। બધા ભાગ્યશાળી પુણ્યશાળી આત્માઓ હાથ જોડીને બેસજો। માં ભગવતીના ચાલીસા બોલવામાં આવી રહ્યા છે, બહુ અદ્ભુત છે। ઓમ રીમ શ્રીમ ક્લીમ શ્રી કામેશ્વરી પદ્માવતી પદ્મનેત્રે પદ્માસને
लक्ष्मीदायिनी वांछा पूर्णी रुद्धिम सिद्धिम जयम 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 कुरु कुरु स्वाहा। पार्श्व प्रभु के चरणों में बंधन हो सकवा, मन वांछित पूरा प्रभु मेरे जीवन का दान। प्रभु चरण की सेविका हे पद्मावती माता, 40 में जिस दिन करो रख दो सिर पर हाथ। कर्णेंद्र देव सुखकारी अधिष्ठायक प्रभु आज्ञाकारी, पद्मावती प्रिया तुम्हारी जैन धर्म की रखवारे। माँ तेरा नाम चमत्कारी, गुणगाती है दुनिया सारी। चरणों में जब शीश झुकाता, दर्शन पावन अति हर्षाता। माँ तेरी तो महिमा न्यारी, श्रद्धा रखते सब नर नारी। तेरा नाम जपे जो कोई, उस घर में नित्य मंगल होई। से सुंदर नयन निराल, जैसे अमृत के हो प्याल। जिस पर तेरी मेहरबानी, बन जाता वो सब में दानी। बिन बादल के चांद तक तरसे, कब रिम झिम कब बारिश बरसे। तब दर्शन बिन मनवा तड़पे, दर्शन पावन अति हरवे। तुम सब माता पूर्ण रंग में, भक्तों के तू है रग रग में। तेरा गुण उठ जिस दिन गाते, खुशियों के सब बंसी बजाते। तेरी प्रतिमा सबसे न्यारी, दौड़ी आती दुनिया सारी। जो मन में संकल्प सजाते, मन वांछित कद्र शीघ्र हो पाते। सूरज साहे तेज तुम्हारा, चांद सचम के मुखड़ा प्यार। 3 लोक में पूजा होगी, प्रकट प्रभावी तेरी ज्योति। कमट वृक्ष ने जल बरसाया, पार्श्व प्रभु को जल में डुबाया। अवधि ज्ञान से ध्यान लगाया, मेरे प्रभु पर कस है आया। देव को मंत्र सुनाए, पार्श्व प्रभु से देव भव पाया। उपकार का भर्ज निभाया, अपना रूप विशाल बनाया।
कर्णेंद्र संग तुम आए, प्रभु को मस्तक पर बिठलाए, माता तुमने चवर तुलाए, तन मन सबो का हर्षाया। अपने भक्तों को दर्शन देती, दर्शन दिखाकर कष्ट मिटा दी, आशीर्वाद से प्रभु पत पाते, क्रांतिकारी कदम उठाते। नेत्रहीन तो आंखें देखी, तुमको धूप पल में बुलाती, बंधु ने जब दर्द सुनाया, मातू ने छठ पुष्प कलाया। वाजन की तू गोद है पर भी, निर्धन को तू धन है देवी, दुखियों की पीड़ा दत्त हर दी, मनोकामना पूर्ण कर दी। जग जाहिर माँ नाम है तेरा, अंधकार में करती सवेरा, मुखमंडल की आभा न्यारी, आकर्षक है तुझे पाए। लालच घर में तारे चमके, रत्न मुकुट तेरे सर पर चमके, कानों में कुंडल मुंड मोए, नाक में नथली तुझको सोहे। हाथों में कंगन खन खन बाजी, पैरों में पैर छम छम नाचे, कंठी कले में हीरो की प्यारी, मंगल सूत्र की महिमा न्यारी। जिस दिन करते हम तेरी भक्ति, तुम सब ने की सी में शक्ति, दर्शन तेरा शक्तिशाली, दर से कोई न जाए खाली। चौघड़िया दूषण मिट जाए, काल रहो सब दोष मिटाए, परदेश में नाम कमावे, मनवांछित धन संपत्ति पावे। इंद्रदेव अमृत बरसावे, चारों ओर हरियाली छावे, अन्न संपदा भर भर पावे, महीने मंगल गीत सुनावे। बूंद जो ज्ञान लगावे, सपने में माँ दर्शन दिखाए, प्रश्नों का उत्तर तू देती, कष्ट निवारण तू है करती। मेरे अंदर शक्ति भर दो, रिद्धि सिद्धि की वृद्धि कर दो, सुख की कलियां नित्य खिलेगी, आत्म संपदा भाग मिलेगी। माँ मुझको बस आशा तुम्हारी, बाकी दुनिया स्वार्थ गुजारी, दिल की धड़कन तुझे पुकारे, माँ तेरा नाम ही पार उठाए। इस दिन तेरा ध्यान लगावे, सुबह शाम चालीसा गावे, दे दो दर्शन मत तड़पाओ, इस जीवन को सफल बनाओ। सकल
सकल तरह को स्वर्ग बनाया, शासन देवी अपन बहाया, हर मंदिर माँ तेरा आसन, सकल संग में कर दी शासन। संकेश्वर या समित शिखरे ठाकोड़ा है शिखर गिरिवन, तेरा चमत्कार कर कर में, महिमा फैली नगर नगर में। पूजा की कुछ रीत न जाने, भक्ति भाव से आए मनाने, वंदन के सिर सदा चढ़ाते, पुष्पहार से तुम्हें सजाते। शुक्ल सातम को पूजा होगी, इस दिन जलती अखंड ज्योति, लाल चुनर की भेंट है आती, अमर सुहागन का वर पाती। कामेश्वर का पहला मंदिर, जहाँ गिरी की शक्ति अंदर, सूरज चंदा दरिया में पानी, अमर रहेगी इसकी कहानी। इंद्रियाणी उत्सव मनाते, समवसरण लखवाद बनाते, यह धरती बन गई है चंदन, तपोभूमि को करते वंदन। रामेश्वर धाम बन रहा है, जन कल्याण की धारा बही, दान पुण्य का रूप निराला, पीके सब अमृत का प्याला। गुरु कृपा से मंदिर बनाया, पार्श्वमाती धाम सुहाया, कामेश्वर में नवरंग लगाया, मोटेरा को शिखर चढ़ाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आते, करके दर्शन भाग्य सराते, संप्रदाय का भेद नहीं है, सब धर्मों का धाम यही है। सीता राधा और काली, लक्ष्मी दुर्गा जग रखवाली, तू है सरस्वती महारानी, कहलाती जगदम्बा भवानी। भिन्न भिन्न है नाम तुम्हारा, एक रूप में तुमको निहारा, काम देनु जो आशा पूर्ति, कल्प वृक्ष बन धन बरसाते। सुनो अब माता में आय शरण में कब से देर, इष्ट देवी खुद मेरी माता, मुझको बना दो तुम जगदाता। मन सब कुछ है तेरा, तेरे सिवा कुछ नहीं है मेरा, मन की पीड़ा तुम्हें सुनाए, पाओ की जग चरण मिलाए। को ताल सगाओ, धन सुख देकर स्वर्ग बनाओ, उसकी हर इच्छा हो कोई, माँ से रहे तो उसकी कोई। माँ पद्मा के द्वार पर प्रेम से झुका
बरसी हरो पीर मन की सदा दो मंगलयासी वरद हस्त मस्तक पर रख दो पैया भक्त तेरे चरणों में दर्द है सदा मिले सुर मेरा तुम्हारा वो सुर बने मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा बादलों की रिम झिम बरसे वो सुर बने सर्गाक्षरंगी चिन्नंदे दिनमल्लय मन प्रसन्नता में दी पूज्य माने दिए सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारणम प्रदानं सर्वधर्माणं जयं देवी शासनं जयं देवी शासनं Someday pad में 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 someday pad Someday we birthday, 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 someday we आज पर्युषण पर्व के तीसरे दिन पंकज भाई के पूरे ग्रुप ने जो यहाँ पर माता जी की भक्ति की, उसके लिए दिव्य लब्धि संस्थान की ओर से सबका मैं आभारी हूँ। और बार बार आपसे हमारी विनती है, जब भी टाइम मिले, मौका मिले, तो भक्ति का लाभ सभी लोग